चलो स्क्रीन विजिबल है सबको? ऑलराइट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। We are going to continue with the reasons for disillusionment after the First World War, and then we are going to get into the non-cooperation movement, followed by the Swarajist and pro-changes movement, no changes movement uh, episode. फिर उसके बाद we are going to follow an entire sequence of events beginning from the Simon Commission right up to the Government of India Act 1935. बीच में हमें साइमन कमीशन और उसके अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ वो कवर करना है, नेहरू रिपोर्ट और उसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस हुए स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम लीग वो कवर करना है. देन वी आर गोइंग टू लुक एट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलोड बाय द round table conference and then the Pune Pact and those other things. Pune Pact ho jayega. Then we are going to look at the Government of India Act 1935. So there's a lot to cover today and आप लोगों को मेरा साथ देना होगा. You will have to anticipate the questions that I'm going to ask and you are going to be extra attentive in today's class. एंड यूल ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट क्योंकि हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कंटिन्यू विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम. हमने डिस्कस कर लिया था अप टू द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द हंटर कमीशन, right? And now another reason for disillusionment against the British rule after the World War was the introduction of the Montfort reforms. So इनको Montfort reforms भी बोल सकते हैं, Montagu Chelmsford reforms भी बोल सकते हैं, या फिर इनका जो ऑफिशियल नेम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी बोल सकते हैं. अब ये who were these Montagu and Chelmsford? Montagu was the Secretary of State for India and Chelmsford was the incumbent Governor General and Viceroy of India. इन लोगों की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन 1918. उसके बेसिस पे इन रिकमेंडेशंस को इनैक्ट किया गया था. ये एक्ट किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, राइट? तो इन सारी चीज़ों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? सो इन लाइन विद द ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917, ये आपको याद होगा मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन था. ही सेड that the ultimate objective of the ongoing constitutional reforms in India is to give to Indians responsible self-government and to prepare them for Swaraj, for dominion status. Right? अब मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट आई इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे, prepared by Montagu and Chelmsford, and on the basis of that, Montfort reforms were introduced in 1919. What was the hope of the British? That Indians जो डिमांड कर रहे थे वो एटलीस्ट पार्शली फुलफिल हो जाएं एंड नेशनल सेंटिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड थे वो थोड़े पैसिफाई हो जाएं. लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? बिल्कुल इनके एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट. तो फर्स्ट लेट अस लुक एट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो व्हाट इज दिस एक्ट फेमस फॉर? कोई जल्दी से बताए मुझे. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? आई होप सबने सुना तो होगा इसके बारे में. It was significant because of the introduction of nobody. अच्छा ठीक है. Akash says bicameralism and diarchy. Right. Shubham says bicameral legislature. So most important provision of this act जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ that was diarchy. ठीक है. अब diarchy किस लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई थी इस एक्ट में? At the central level, at the provincial level, or at both levels? At the provincial level. Good. Right. तो देखो एक एक करके इनके प्रोविजंस हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंटर this act provided for a bicameral legislature. Bicameral आप सब लोगों को पता है that there is going to be an upper house and a lower house. The lower house is going to be the house of the people and the upper house is going to be a council of states. तो यहाँ पे भी similar scheme introduce करी
अंग्रेजों ने. The lower house was known as the Central Legislative Assembly. It would have 145 members in total, with 104 of them being elected and 41 being nominated. So, right. आवाज ब्रेक हो रही है. Is everybody else being able to hear me properly? या सबको प्रॉब्लम हो रही है? तो शुभम, I suggest that you reconnect to the session. मे बी आपके नेटवर्क में कोई इशू हो, बिकॉज एवरीबडी इज बीइंग एबल टू हियर मी. राइट. हाँ, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अ majority ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. इसका टेन्योर कितना था? 3 years. लोकसभा का कितना होता है? 5 years, राइट. लेकिन इसका 3 years था. जो अपर हाउस था, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट वुड ऑल्सो हैव अन majority of elected members. 36 of the members out of 60 were to be elected. And unlike the Rajya Sabha, which is a continuous house which cannot be dissolved, this house that was created by the government of India in 1919 had a tenure of 5 years. So it was not a continuous house. Permanent fixture नहीं था ये वहाँ के legislature का. Clear है? अच्छा. Second point, in the central legislature, seats allot करी जाती हैं to the different provinces, both in the central legislative assembly as well as in the council of states. In the present scheme, हमारे जो independent India का constitution है, वहाँ पे कौन सा principle लगाया जाता है for allocation of seats? The principle of population. तो यानी कि जिस state की जितनी population होगी, उस हिसाब से उसकी legislature में उतनी seats बनेंगी. But over here, the principle of representation on the basis of population was not followed. यहाँ पे क्या system लगाया गया था? This is seats were allocated to the states on the basis of their importance. तो for example, military importance for Punjab, तो पंजाब को ज़्यादा seats मिली, and financial importance for Bombay. The most populous states such as Bengal and UP received lower number of seats because of this principle. Clear है? Right. Now let us move on. अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में there are 3 lists ना, union list, state list and the concurrent list. But in under this constitution there were only 2 lists. One was the central list and the other was the provincial list. Central list पे कौन legislate करेगा? जो imperial legislative council है, that is the central legislature. And provincial list पे कौन legislate करेगा? The provincial legislature. लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने एक बदमाशी करी. What was that? They introduced the system of diarchy at the provincial level. अच्छा, diarchy कौन सी गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? Was it introduced in the legislative sense or the executive sense? So it was introduced in the executive sphere. ठीक है, it was not introduced in the legislative sphere. अब इसका मतलब क्या हुआ? That diarchy was introduced at the provincial level. तो provincial list जो थी, उसमें there were different subjects of legislation. They also acted as different subjects of administration. These subjects were divided into 2 different lists. One was the reserved list and the other was the transferred list. अब reserved list को कौन administer करेगा? तो governor was supposed to be the executive head at the level of the provinces. But the reserved list subjects were to be administered by the governor on the advice of his executive councillors who were not elected. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. And transferred subjects were also to be administered by the governor on the advice of his council of ministers, which were elected. Right. Now let us briefly see कि किस तरह के subjects reserved list में थे और transferred list में थे. The reserved list consisted of most of the more important subjects of administration, such as finance, police, irrigation and power, whereas the transferred list consisted of subjects the administration of which would have been impossible without having control over the reserved list subjects, such as education, health, agriculture, industry, etc. ठीक है,
तो ये जो डिवीजन था इट वाज अनसाइंटिफिक एंड irrational and it was bound to cause friction between the elected ministers and the non-elected executive councillors. Further, the ministers who were elected could have no real control, could have no financial control over the bureaucrats, over the British officials. तो उनके साथ भी फ्रिक्शन था. तो जब ये डायरकी का प्रिंसिपल 1935 एक्ट के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक रिमार्क दिया था दैट डायरकी इज लाइक अ कार विच इज ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन. ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें केवल ब्रेक्स ही हैं और इंजन नहीं है. क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर आपको एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री चलाना है तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी. तो ये डिवीजन इस तरह से इन्होंने किया था कि एक बच्चे को बैट दे दिया हाथ में, पैड्स पहना दिए, हेलमेट पहना दिया, ग्लव्स पहना दिया, लेकिन उसको बॉल नहीं दी. राइट, तो सब कुछ उसके हाथ में पकड़ा दिया है बट यू कैन नॉट प्ले. राइट, सो दिस वाज द काइंड ऑफ इलॉजिकल स्कीम दैट हैड बीन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश. इसको बोलते हैं डायरकी. 1919 में कहां पे इंट्रोड्यूस करी गई? एट द प्रोविंशियल लेवल. ओके, देन नेक्स्ट प्रोविजन देखो, partially responsible government was introduced at the provincial level, but responsible government was completely missing at the center. अब इसका क्या मतलब हुआ that partially responsible government was introduced at the provincial level? देखो, the bedrock of parliamentary democracy is responsibility, collective responsibility, right? अब यहाँ पे जो प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स हैं they were responsible to the legislature, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. तो प्रोविंसेस में पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड सेंटर में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं. वहां पे गवर्नर जनरल जब भी चाहता तो इलेक्टेड मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकता था, इलेक्टेड मेंबर्स को भी डिसमिस कर सकता था, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता था. अच्छा, आगे देखिए, legislators in the provinces needed the government's permission in order to enact any legislation. तो पहले गवर्नर से परमिशन लीजिए, फिर उसके बाद लॉ बना सकते हैं. अच्छा, गवर्नर के पास वीटो पावर भी थी. ही कुड ऑल्सो रिस्टोर कट्स टू द बजट. तो यानी कि पहली बार बजट के एटलीस्ट कुछ आइटम्स में वोटिंग अलाउ करी गई थी, बट 75% of the budget was still not votable. क्लियर है इतना? ओके, गवर्नर जनरल के पास जो इसके पहले सारी पावर्स थी वो कंटिन्यू करी. फॉर एग्जाम्पल, he could restore cuts, certify bills and issue ordinances. So these powers were with the governor general even during the 1909 act. वो यहाँ पे हटाई नहीं गई, कटेल नहीं करी गई. लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी आई इस एक्ट के थ्रू, जैसे कि for the first time the principle of direct elections was introduced. लेकिन यहाँ पे भी कुछ कमियां थी, such as the franchise was very limited. ओके, तो इंडिया की पॉपुलेशन उस समय करीब 260 मिलियन थी, that is 26 crores, out of which only 1.5 million people were eligible to vote. So very small portion of the Indian population actually got the vote. एंड ये वोट किस बेसिस पे दिया जाता था? सो देयर वर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक क्वालिफिकेशंस, राइट? सो ओनली द एलीट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कुड वोट. अच्छा, पहली बार विमेन को भी वोट मिला इस एक्ट के थ्रू, लेकिन द स्कीम ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट which had been introduced by the India Councils Act 1909 was expanded. अब कम्युनल इलेक्टरेट किसको किसको दिया गया? 3 new communities, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को एंड इंडियन क्रिश्चियंस को. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन वाज दैट 3 out of 8 members of the governor general's executive council were to be Indians. फर्दर, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इंडियन नेशनलिस्ट की कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसके इंडिया ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं इंडियन ट्रेजरी
से चार्ज ना किए जाएं और ब्रिटिश ट्रेजरी पे चार्ज किए जाएं. सो दैट वाज फुलफिल्ड. फर्दर, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन इंडियन हाई कमिश्नर एट लंदन. सो पहली बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मली इस्टेब्लिश करी गई. राइट, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इंडियाज इंटरेस्ट देयर वुड बी अ हाई कमीशन एट लंदन. ऑलराइट, अब इसका इवैल्यूएशन देख लेते हैं. हालांकि हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस ही कर रखी हैं. फॉर एग्जाम्पल, वील से दैट इट फेल्ड टू फुलफिल ऑल द nationalist inspirations. There was no indication of responsible self-government or autonomy in this act. Large number of nominated members अभी भी थे दोनों काउंसिल्स में. गवर्नर्स के पास वीटो सर्टिफिकेशन ऑर्डिनेंस रेस्टोरेशन की पावर्स थी. इसका मतलब कि जो मिनिस्टर्स थे उनके पास कोई रियल लेजिस्लेटिव या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं था. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल प्रोविंसेस में पार्शली इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट वाज एब्सेंट एट द सेंटर. फ्रेंचाइज वाज वेरी लिमिटेड. Communal electorate was expanded, and the principle of diarchy, which was unscientific and irrational, was bound to create friction and fail. All the important subjects were under the reserve list, and ministers had no financial control over the officials. So this was the Government of India Act 1919, or the Montfort Reforms of 1919. So this also became a major cause for disillusionment with the government after the First World War. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लो इसके ऊपर. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आया हुआ है. द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, बताइए कौन सा, ए बी सी या डी में से. क्विकली. यस, ऑल राइट, गुड, वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है. Montagu-Chelmsford proposals were related to social reforms, educational reforms, reforms in police administration, or constitutional reforms. बताओ जल्दी. क्वेश्चन नंबर 2 का डी. गुड, they were related to constitutional reforms. Next question, which of the following is or are the principal features of the Government of India Act 1919? 1. Introduction of diarchy in the executive government of the provinces. 2. Introduction of separate communal electorates for Muslims. 3. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. You have to choose the correct answer from the following options. बताइए, statement 1, is it correct? It is correct. Statement 3 is correct. Statement 2 is incorrect. Communal electorates for Muslims was introduced in 1909. Morley Minto reforms. So the correct answer is 1 and 3 only, C. Good. Next question. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to A. Division of central legislature into two houses. Introduction of double government, that is central and state governments, having two sets of rulers, one in London and another in Delhi. Or D. Division of subjects delegated to the provinces into two categories. तो आंसर बताओ. डी. गुड, वेरी गुड. तो समझ में आ गया है, आगे बढ़ें इसको. ऑल राइट, सो देर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द खिलाफत इशू, विच also became a major cause for anger among nationalists. खिलाफत का मतलब क्या होता है? It stands for the caliphate. कैलिफ को पर्शियन, हिंदी, उर्दू, टर्किश, अरबिक, इन सब में खलीफा बोला जाता है. जैसे सुल्तान की सल्तनत होती है, वैसे ही खलीफा का खिलाफत होता है. राइट, इट डज नॉट मीन ऑपोजिशन. ओके, द खिलाफत स्टैंड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द कैलिफ. Who is the caliph? He is considered to be the spiritual and political leader of the Islamic world by a section of Muslims, not by all Muslims. Muslim community में भी कई सारे divisions हैं. It also consists of a number of sects, but a section of Muslims consider the caliph to be the political and religious leader of the Islamic world. अच्छा,
in 1919 जो ऑटोमन्स का सुल्तान था, who was the ruler of Turkey, he was also the caliph. ठीक है, तो व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? इट वाज अ पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट. अब ये पैन इस्लामिज्म क्या होता है? It means that when certain Muslims try to imagine and to project the entire Muslim community as having shared interests, and they also have some political ambitions. For example, कि हम अपना एक नेशन स्टेट बनाएंगे, वी आर गोइंग टू join all of this, right? So pan Islamism is what pan-Islamists had led the movement. Acha, the Khilafat movement was a pan-Islamist movement launched in all countries with large Muslim populations, including India. For what? In the defense of the Ottoman Empire and the Caliph during the First World War and after it. Acha. What was the concern of the pan-Islamists? That Turkey is fighting against very strong forces and it may lose the war. And if it does lose the war, they were concerned that the Allied powers would dismember the Ottoman Empire and topple the Caliph. तो टर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और कैलिफ को डिसमिस कर देंगे. They were also concerned that if the holy Islamic places slip out of the control of the Caliph, then they would be desecrated by the allies. So places such as Mecca, Medina and Jerusalem were also considered to be under threat. Indian Muslims ने क्या किया? Led by the Ali brothers, that is Muhammad Ali Jauhar and Shaukat Ali, Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan, Hasrat Mohani and Abdul Bari along with others, they formed the All India Khilafat Committee in early 1919 at Bombay, and they demanded that पहला, the caliph's control over the holy Muslim places should be retained. That means Mecca, Medina, Jerusalem के ऊपर caliph का rule कायम रहना चाहिए, and also that the caliph should be left with sufficient territories in order to defend himself. That means they did not want the complete dismemberment of the Ottoman Empire. तो इन्होंने क्या methods use किए? तो शुरू में they relied on moderate methods such as prayers, petitions, meeting proposals, etc. So they addressed several public meetings, mobilized Indian Muslims both in the cities and in the villages. Muhammad Ali Jauhar also led a deputation to Europe. Why? In order to convince the allies not to treat the caliph too harshly. So Muhammad Ali Jauhar went to Europe after the allies had emerged victorious and they were designing a treaty to impose upon Turkey. अच्छा, लेटर व्हाट हैपेंड? जब अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी तो एक मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज हुआ एंड दे स्टार्टेड यूजिंग एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स सच एज बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन. क्लियर है? सो दिस इज द खिलाफत इशू. अब हमें देखना है दैट हाउ इट मर्ज्ड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो सबसे पहले तो सम फैक्टर्स बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इसको देख लेते हैं क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द disillusionment which had been caused by the actions of the government after the first world war. तो उसमें चारों फैक्टर्स आ जाएंगे. दैट मीन्स द खिलाफत इशू, डायरकी, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द राउलेट सत्याग्रह, राउलेट एक्ट. So the repressive tactics of the government and its atrocities after the war and the principle of diarchy had caused the Congress to lose faith in constitutional methods of struggle. Further, it was also felt कि masses अब बहुत गुस्सा हैं and they are ready for action. So it was an opportune moment to utilize the energy of the masses and launch a mass movement. और सबसे importantly, Gandhi ji perceived the Khilafat issue to be a golden opportunity in order to cement Hindu-Muslim unity. राइट कि अगर हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में मुस्लिम डिमांड्स को रखेंगे आगे तो दैट वुड मीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड कम टुगेदर. दैट इज व्हाट गांधी जी होप्ड फॉर. अच्छा, अब देखते हैं दैट वर देयर सम लीडर्स हु वर अपोज टू अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट. तो देखो, हु अपोज दिस मूवमेंट? Tilak and Jinnah opposed the idea of launching a mass movement over a
religious issue, right? So Tilak felt that the Congress should not raise a Muslim issue from its all India platform. Similarly, Jinnah also felt that a religious issue should not be raised by a secular political party. So when he began his career, Jinnah was a pure secularist, and it was only later after 1937 that he started relying on communal politics. ठीक है, तो एक तो ये थे. अच्छा, तिलक was also not convinced about the strategy of सत्याग्रह as a political instrument. तो तिलक को सत्याग्रह के ऊपर भरोसा नहीं था whether it would be successful. अच्छा, there were also some Congress members who did not want to boycott legislatures, such as C.R. Das and Motilal Nehru. Then there were a few others who believed only in constitutional methods of struggle, such as G.C. Kharpade, Bipin Chandra Pal, Annie Besant, etc. इसमें जिन्ना को भी आप ऐड कर सकते हैं. So in the beginning, Jinnah was only a constitutionalist and a secular person, right? Now we have to see how the Khilafat movement merged with the non-cooperation movement. So once Gandhi ji realized that this was a golden opportunity to unite Hindus and Muslims, he was made the leader of the All India Khilafat Committee, which had been established at Bombay. Acha. He traveled the entire country with the Muslim leaders in order to raise support for the Khilafat issue. जून 1920 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई एट इलाहाबाद, एंड यहां पर इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कॉल दिया फॉर boycott of goods and institutions such as British goods and institutions such as schools, colleges, law courts, government service councils, etc. So they gave the call for non-cooperation. 1 अगस्त 1920 को दो चीजें हुई. पहला, तिलक passed away, तो the strongest voice opposing the non-cooperation movement within the Congress was no longer there. Secondly, जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस था which was to be imposed on Turkey, that उसका ड्राफ्ट पब्लिक करा गया, राइट? एंड जैसे ही ये ड्राफ्ट पब्लिक को पता लगा दैट टर्की के ऊपर बहुत हार्श कंडीशंस लगाई गई हैं, तो देयर वाज अ मैसिव स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट इन all corners of India. People came down on the streets and they boycotted British goods and institutions. What happened then? The Khilafat non-cooperation movement was formally launched, officially launched by the All India Khilafat Committee on the 31st of August 1920. फिर 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ. वहां पे कांग्रेस ने मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया. कांग्रेस गेव द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन, बॉयकॉट एंड द प्रमोशन ऑफ खादी एंड चरखा. इस स्टेज पे मूवमेंट को अपोज किसने किया? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, तो दीज वर द कांग्रेसमैन हु अपोज दिस रेजोल्यूशन. दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ नागपुर में. प्रेसिडेंट वाज एम वीर राघवाचार्य. यहां पे दो चीजें हुई. पहला तो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को एंडोर्स किया गया, जो कि स्पेशल कांग्रेस सेशन ने अडॉप्ट किया था. एंड सेकेंड, कांग्रेस का एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, द एसेंस ऑफ विच वाज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, राइट? अब देखो क्या हुआ. नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन एंडोर्स किया. व्हाट वर द डिमांड्स? द डिमांड्स वर स्वराज, addressing the Punjab wrongs and खिलाफत. तो तीन इश्यूज के ऊपर कांग्रेस का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था: स्वराज, पंजाब रॉन्ग्स एंड खिलाफत. अच्छा, अब देखिए और कि लास्ट टाइम एट कलकत्ता अपोज किसने किसने किया था? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड जिन्ना. यहां पे who moved the motion, who moved the resolution? सीआर दास, seconded by Motilal Nehru, and it was opposed by Jinnah. So C.R. Das and Motilal Nehru had bowed to the Congress discipline. They did not want to, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बात मान ली by this point of time. But Jinnah remained firm in his opposition.
and because of their belief in the constitutional methods of struggle, some prominent Congress leaders resigned from the Congress, such as Jinnah, Besant, Bipin Chandrapal, and G.C. Kharpade. Surendranath Banerjee of Indian Association fame launched his new political party, that is the Indian National Liberal Federation. अच्छा, यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हुई नागपुर सेशन में वो क्या था, दैट कांग्रेस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, विच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन. सो कांग्रेस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम रीऑर्गेनाइज किया गया. कैसे? एट द वेरी टॉप there would be a Congress working committee, CWC. It would be a 15-member executive decision making body. तो जैसे आपके पार्लियामेंट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, दैट इज द यूनियन कैबिनेट, उसी तरह का ये बॉडी था. इट वाज देयर टू मेक क्विक डिसीजंस, राइट. अच्छा, उसके नीचे क्या था? देयर वाज टू बी अ जनरल इलेक्टेड ऑल इंडिया बॉडी known as the All India Congress Committee. It would have about 370 members जो कि अलग अलग प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर के आएंगे. Below the All India Congress Committee was to be the Provincial Congress Committee or the Pradesh Congress Committee. These provinces or these committees were to be organized on a linguistic basis. तो linguistic basis for reorganization of states कंसेप्चुअलाइज यहां पे भी कर लिया गया था. ठीक है. अच्छा, ओके, देयर इज अ डाउट, आकाश ने डाउट पूछा है. इफ नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट कलकत्ता सेशन अंडर लाला लाजपत राय और नागपुर सेशन, सो इट वाज ओरिजिनली पास्ड एट द कलकत्ता सेशन but later endorsed at the Nagpur session. ठीक है. तो दोनों चीजें थी. कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता जो स्पेशल सेशन था, दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय लाला लाजपत राय, एंड जो नागपुर सेशन था दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय एम वीर राघवाचार्य. तो कांग्रेस ने ऑफिशियली अपना मूवमेंट सितंबर ऑफ 1920 में लॉन्च कर दिया था, 4 सितंबर 1920 से, बट एट द एनुअल सेशन इट वाज री-एंडोर्स्ड. ठीक है. ओके. हाँ, तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की हम बात कर रहे थे. दे वर टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस. अच्छा, इसके नीचे जिला कांग्रेस कमिटीज, वार्ड कांग्रेस कमिटीज, ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज एंड विलेज कांग्रेस कमिटीज भी होनी थी. सो दिस वाज हाउ द डिसीजन मेकिंग ऑफ द विद इन द कांग्रेस वाज डिसेंट्रलाइज्ड. ऑल ऑफ दीज कांग्रेस कमिटीज were to work on the basis of the parliamentary principle, majority voting के basis पे यहाँ पे decisions लिए जाने थे. अच्छा, how was it democratized? That the leaders who were to serve at the top of the Congress leadership, ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर से टपकाए जाएंगे. They would be elected from each of the Congress committees, and then the All India Congress Committee would elect members of the Congress Working Committee, and this was to happen at every session of the Indian National Congress. तो every annual session पे ये पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से रीहॉल किया जाना था. So this is how it was democratized. Further, in order to increase Congress membership, उसकी membership fee को भी reduce कर दिया गया. कितना? to 4 आनाज. अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया हूं, तो यू कैन ऐड अ थर्ड पॉइंट दैट कांग्रेस gave up its commitment to constitutional methods of struggle and said that it would use peaceful and legitimate methods. And peaceful and legitimate methods determine कौन करेगा कि ये peaceful and legitimate है? The Congress itself. तो यानी कि it broke away from the use of only constitutional methods of struggle. So you can add this point over here. Point number 3, Nagpur session में, that Congress moved away from its commitment to constitutional methods of struggle and said that it would use only peaceful and legitimate means to attain Swaraj. Right. अब तो ये हमने देख लिया कि मूवमेंट लॉन्च कैसे हुआ.
Now we have to see what were the various programs of the movement. तो it was a non-cooperation movement. Non-cooperation का essence क्या होता है? Not to cooperate with the British in any way that would help them to govern us. अब हमने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे देखा था कि स्वदेशी के अलग अलग डायमेंशंस थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ इकोनॉमिक थे, कुछ सोशल थे, राइट. एजुकेशन में भी उसका इफेक्ट था. तो यहाँ पे भी the same dimensions are going to be reflected. For example, English goods were boycotted and burnt publicly. Peaceful picketing of shops selling foreign goods was organized. English schools and colleges were boycotted, and nationalist schools and colleges were set up under various leaders such as Acharya Narendra Dev, C.R. Das, Lala Lajpat Rai, Zakir Hussain, etc. For example, बंगाल में एक नेशनल कॉलेज सेटअप किया गया एट कलकत्ता विद सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट. सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में on Gandhi ji's, he had responded to Gandhi ji's call and he had resigned from the Indian civil service. तो इनको यहाँ पर एक पोजीशन दी गई एज प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज. काशी विद्यापीठ was set up at बनारस, बिहार विद्यापीठ at पटना, गुजरात विद्यापीठ at अहमदाबाद एंड जामिया मिलिया at अलीगढ़, नॉट एट दिल्ली. बाद में ये दिल्ली पहुंचा, ठीक है. एट अलीगढ़ वर ऑल्सो सेटअप. इंग्लिश लॉ कोर्ट्स को भी बॉयकॉट किया गया एंड सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स also resigned from the bar such as C.R. Das, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Asaf Ali, etc. right. तो इन्होंने रिजाइन कर दिया गया, राइट. आगे देखिए, many nationalists also resigned from the government service such as Subhash Chandra Bose who left the ICS. Many Indians also renounced titles and honors bestowed by the British. तो कई सारे राजा, महाराजा, बहादुर, नवाब, इस तरह के टाइटल्स मिले हुए थे लोगों को, या फिर कैसरे हिंद के टाइटल्स मिले हुए थे, किसी को नाइटहुड मिला हुआ था. तो ये सब अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हो गया. अच्छा, देन व्हाट डिड द नेशनलिस्ट डू? जेल भरो आंदोलन इन्होंने शुरू किया इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट. कोटिंग ऑफ अरेस्ट एंड फिलिंग अप ऑफ ब्रिटिश जेल्स वाज एन इफेक्टिव टैक्टिक यूज्ड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट. अच्छा, एक फंड ऑर्गेनाइज किया गया इन ऑनर ऑफ बाल गंगाधर तिलक टू फंड नेशनलिस्ट एक्टिविटी नोन एज द तिलक स्वराज फंड. एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये था दैट दे हैड टू कलेक्ट 1 crore रुपीज एंड इट गॉट ओवर सब्सक्राइब. तो यानी कि 1 crore से बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट हो गया. कांग्रेस मेंबरशिप विद इन अ फ्यू मंथ्स बढ़ करके 50 लाख मेंबर्स पहुंच गई. So that was also a huge step. The Congress in its own right became a mass movement, right. In many places workers answered the call for strikes and lockouts as well. So in places such as Sholapur. लेकिन on the whole अगर आपके पास question आता है that workers participated on a large scale during the non-cooperation movement, the answer would be no. ठीक है, वर्कर्स ने कहीं कहीं पे स्पोराडिक प्रोटेस्ट करे थे, स्पोराडिक लॉकआउट्स किए थे, बट दे वर ऑल एनेक्डोटल इंसिडेंट्स. इट वाज नॉट अ नॉर्म दैट वर्कर पार्टिसिपेशन वाज लार्ज स्केल. इनफैक्ट यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए इसमें दैट वर्कर पार्टिसिपेशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लिमिटेड. इट वाज नॉट वाइड स्प्रेड, रादर इट वाज स्पोराडिक. वर्कर पार्टिसिपेशन in the non-cooperation movement was not widespread. Right. अब इनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ सेलिएंट फीचर्स भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट इन द ट्रू सेंस. इसके पहले भी ऑल इंडिया मास मूवमेंट हुआ है such as the Swadeshi movement, but that was mostly limited only to the cities. Peasants को वो attract नहीं कर पाया था. यहाँ पे किसने किसने participate किया? Peasants, workers, traders, intellectuals, students, women, etc. participated in large numbers. The movement received popular support in both cities as well as villages and was most active in the states of Punjab, UP, Bihar, Bengal, Odisha, Assam, Bombay and parts of Madras. Okay, Gandhi ji was able to successfully link political issues with socio-cultural issues such as इन्होंने खादी प्रोग्राम भी लॉन्च किया, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटी लिकर प्रोग्राम,
Hindu Muslim unity program, Sarv Dharm Pratna Sabha, etc. अब what was the significance of linking of socio-economic issues and cultural issues with the political issues? कि देखो अगर एजिटेशन होता फॉर स्वराज और लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी जाती डोमिनियन स्टेटस की, या फिर लोगों को समझाने की कोशिश करी जाती कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और क्यों गलत है, सो पार्टिसिपेशन वुड हैव बीन लिमिटेड because most of the population of India back then did not have this consciousness और इतनी political education उनके पास नहीं थी कि इतना सब कुछ समझ पाते. But things which were close to their heart such as खादी, village development, women के लिए anti liquor program was very effective. Those people who wanted Hindu Muslim unity, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव हो गया. एंड सर्व धर्म प्रार्थना सभा, सो इंडिया सोसाइटी इज क्वाइट ट्रेडिशनल एंड quite religious. So Sarv Dharm Pratna Sabha was also something which was very attractive. So Gandhi ji, by being able to link all of these programs with the political issues, made a huge contribution to the expansion of the national movement. ठीक है, तो truly massive movement पहली बार इंडिया में देखने को मिला. Right. Hindu Muslim unity was at its peak. राइट, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी स्ट्रांग थी. बट इफ योर क्वेश्चन आस्क्स यू दैट देयर वर नो इंस्टेंसेस ऑफ हिंदू मुस्लिम डिस्कॉर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विल दैट बी करेक्ट और इनकरेक्ट? इट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है दैट देयर वर मोपला राइट्स इन केरला. तो यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में clashes हुए and a number of Hindus were persecuted, right? So you must remember this. और distinction दोनों में बता देना कि yes, Hindu Muslim unity on the whole high थी, लेकिन there were some instances of communal violence such as the Mopla riots. अच्छा, स्वराज became a household slogan, तो गांव-गांव तक घर-घर में स्वराज गूंजने लगा. गांधी जी had ensured the masses that स्वराज would be attained within 1 year. गांधी जी ने प्रॉमिस कर दिया था मासेस को, एंड दिस हैड रेडिकलाइज्ड द मासेस एंड रिमूव्ड द फियर ऑफ रिप्रेशन फ्रॉम देयर माइंड्स. तो अब लोगों के मन में से डर खत्म हो गया था. किस चीज का? ब्रिटिश रिप्रेशन का, सरकार के डंडे का. एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स. अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम women participated in the movement in large numbers. How? Because Gandhi ji had linked the political issues with social cultural issues and made the political participation of women acceptable in national life through the creation of new avenues in which women could give national service. For example, what was the greatest role that women played during the national movement? Picketing of liquor shops, picketing of shop selling foreign goods, सर्व धर्म प्रार्थना सभास. तो यहाँ पे गांधी जी ने ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट दिस वे कि ही न्यू कि विमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे. तो जहाँ पे करेंगे वो इन्होंने अलाउ किया, वो इन्होंने एनकरेज किया. राइट, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अनदर मेजर event took place that in 1921 at the Indian National Congress session in Ahmedabad, हसरत मोहानी ने पहली बार ये प्रपोज किया कि स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज होना चाहिए. सो ही वाज द फर्स्ट अमंग द नेशनलिस्ट्स टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज. लेकिन कांग्रेस ने इनके रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डिमांड ऑफिशियली रेज्ड बाय द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? बताओ, व्हेन एंड इन व्हिच सेशन? 1929. गुड. कहां पे? लाहौर. वेरी गुड. ओके, बट दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है एंड यूजुअली स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो. राइट, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को. क्या हुआ था? 22 पुलिसमैन were shuttered inside the police station and that police station was set on fire by some protesters. 12 February 1922 को क्या हुआ?
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स गांधी जी से मिलने के लिए गए, कहां पर, बारदोली में, एंड यहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट को यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस के जो सीडब्ल्यूसी लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी को मनाने की काफी कोशिश करी, बट गांधी जी डिड नॉट बज। Therefore, the CWC came out with the Bardoli resolution, for what? Through which it declared that it will stop all activity which was leading to law breaking, यानी कि civil disobedience, non cooperation के सारे acts ये seize कर देंगे, and they would start a program for constructive work. तो villages में जाकर के खादी प्रोग्राम, हिंदू मुस्लिम प्रोग्राम एक्सेट्रा ये सब चलाएंगे। अच्छा, there were several prominent leaders such as C.R. Das, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, who were anguished at the sudden withdrawal. उनको समझ में नहीं आया कि गांधी जी ने ये डिसीजन क्यों लिया है, because by that point of time the people of India had become very radicalized, and the British were had also started facing a number of difficulties. So the empire was on the brink of being brought down to its knees. एटलीस्ट ऐसा परसेप्शन था नेशनलिस्ट के अमिट्स द नेशनलिस्ट्स। देन मुस्लिम्स वर डिसइल्यूजन विद द कांग्रेस एंड गांधी जी, बिकॉज अचानक से मूवमेंट हटा लिया गया था एंड मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि गांधी जी ने अपना हाथ खींच लिया है, एंड देयरफॉर यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स सफर्ड, राइट। तो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर आपसे पूछा जाएगा that it created lasting Hindu-Muslim unity, so it would not be correct. It was able to create only temporary Hindu-Muslim unity. Clear है इतना? तो for the time being Hindu-Muslims के बीच में unity हुई, लेकिन बाद में as soon as the movement was withdrawn, the relations started cooling down. अच्छा, गांधी जी ने what were the reasons why he withdrew the movement? First of all, violence was not in tune with his idea of peaceful सत्याग्रह। तो जैसे ही वायलेंस हुआ उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। सेकेंडली, गांधी जी ऑल्सो एंटिसिपेटेड that the government is going to react with in a very heavy handed manner, and violence and counter violence का एक major cycle चलेगा, and it would take the movement out of his hands. He would no longer be able to control the passions of the masses, and he would no longer be able to decide the direction of the movement, right? And he did not want this happening. Thirdly, अच्छा, mass movements जो होते हैं, they can never be sustained for a very long period at a high intensity. जो common people होते हैं, they only have a limited capacity for agitation. उसके बाद tiredness हो जाती है. There are some economic realities also कि अगर किसी ने अपनी दुकान बंद कर रखी है, मिल बहुत दिनों से शटर्ड है, तो पैसा नहीं होगा तो it will cause more misery to yourself, right? So therefore people become tired and they lose interest in the movement. गांधी जी realized this, तो इन्होंने अपनी मास मूवमेंट की स्ट्रैटेजी ही ऐसी बनाई थी that it should always happen in stages. अगर पहला स्टेज है स्ट्रगल का, the next stage should be that of a truce, कि सरकार के साथ सुलह कर लो, and once the masses have recovered, फिर उसके बाद active phase of struggle दोबारा से शुरू कर सकते हैं. That is STS, struggle, truce, struggle. And PCP is again the same thing, pressurize, compromise, pressurize. So pressurize the government, when the masses become tired, strike a compromise with the government, and when the masses regain their strength, pressurize the government once again. Acha, what was to be done in the period when truce or compromise phase was going on? तो इस समय गांधी जी बोलते थे that at the ground level Congress should work in order should engage in constructive activity at the ground level, so that masses could be prepared for movements in the future, mass movements in the future. अच्छा, फर्दर एक रैडिकल ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था, स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया, जो जमींदारी एरियाज, परमानेंट सेटल्ड एरियाज थे, कि पेजेंट्स ने एक क्लास मूवमेंट शुरू कर दिया था अगेंस्ट द जमींदार्स. तो गांधी जी wanted to prevent this. He did not want the movement becoming a class war. अच्छा, what happened after the withdrawal of the movement?
मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वाज सेंट फॉर 6 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट, राइट। तो इनको अरेस्ट करके हटा दिया गया सीन से। अच्छा, revolutionaries who had been silent till now and they had been actively supporting the non-cooperation movement in the hopes that Swaraj would come, now were disillusioned with the Congress and Gandhiji's ideology once again, and revolutionary activity अब रिवाइव हो गई। आपको याद होगा कि 1918 के बाद आफ्टर द गदर कॉन्स्पिरेसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कम हो गई थी। द रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू गिव अ ब्रेक एंड सी व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स डू, एंड उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। तो दे हैड सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे बिकेम एक्टिव वंस अगेन। So this was the non-cooperation movement, right? There are some questions, previous year's questions. Pehla, which of the following were the main objectives of the Khilafat movement? One, to raise anti-British feeling amongst Muslims of India. Two, to reform the Muslim society. Three, to demand separate electorates and preserve the caliphate. And four, to save the Ottoman Empire and preserve the caliphate. You have to choose the correct answer from the following options: 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 और 1 and 4. तो बताइए जल्दी से। So if you look back at the demands of the खिलाफत मूवमेंट, वहां पे कोई सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। फर्दर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मुस्लिम को ऑलरेडी मिल चुके थे, सो व्हाई वुड दे डिमांड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स? वाज देयर एनी क्वेश्चन ऑफ रिफॉर्मिंग द मुस्लिम सोसाइटी? तो यहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था। Was it an anti-British movement? Yes. Earlier petitions, prayers, meetings चल रही थी, उसके बाद anti-British movement start हो गया। They had a program of boycott and non-cooperation also. And most important demand of the Caliphate movement was to save the Ottoman Empire and preserve the Caliphate. So 1 and 4 are correct. The correct answer is D. ठीक है, तो आंसर करेक्ट है D. राइट, अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? तो बताइए, वन ऑफ दीज फोर अभी अभी नाम बताया था आपको। मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान और अब्दुल कलाम आजाद। 1921 में who had raised the demand for Purna Swaraj for the first time? Good. B. Maulana Hasrat Mohani. Next question, assertion and reasoning है। Gandhi stopped the non-cooperation movement in 1922. Reason is violence at Chauri Chaura led him to stop the movement. Options बताइए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false, or A is false but R is true. So correct answer is both of these statements are correct and R is the correct explanation of A. तो आंसर हो गया A. ठीक है, right. Next question. Consider the following events during India's freedom struggle: Chauri Chaura outrage, Morley Minto reforms, Dandi March, and Montague Chelmsford reforms. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, देन मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 2, 4, then Chauri Chaura outrage 1, and finally Dandi March in 1930. Right? So 2, 4, 1, 3. The answer is B. Good. कुछ practice questions हैं, you can go through them. Right. Next topic is Swaraj Party. So what is the Swaraj Party?
So what had happened after the withdrawal of the non-cooperation movement was कि गांधी जी अरेस्ट हो गए थे and Congress no longer had a clear leader. And इस political vacuum में दो groups emerge हुए within the Congress known as the Swarajists or pro-changers and the no-changers. The Swarajists were led by C.R. Das, Motilal Nehru and Hakim Ajmal Khan. No changers were led by C. Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad, M. A. Ansari, and Sardar Patel. What did the Swarajists want? They wanted to end the boycott on legislatures. Right? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे लेजिस्लेचर्स पे और इलेक्शंस के ऊपर बॉयकॉट लगा था, दे वांटेड टू एंड दैट एंड contest in the upcoming elections to enter the councils. No changers wanted to continue the policy of boycotting the legislatures, boycotting the councils. They said that the Congress should rather be focusing on constructive work. तो वो गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, एसटीएस पीसीपी वाली में, कि ट्रूस पीरियड में कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए. स्वराजिस्ट्स वर सेइंग नो, लेट अस एंटर इनटू द काउंसिल्स. What were the reasons that they gave behind their stand? देखो, they said that council entry would open a new front to oppose the British. So that means that once they enter the councils, they could more effectively oppose the British from within them. Secondly, इन्होंने ये बोला कि अगर हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो अंग्रेज यहाँ पे किसको भर देगी? अपने चमचों को. It is going to fill these councils with loyalists and it would use their borrowed legitimacy in order to justify all its acts. So they wanted to preserve that also. Thirdly, they said कि इंडिया में अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है, कांग्रेस की लीडरशिप इज इन शैम्बल्स, गांधी जी इज इन जेल एंड इस सिचुएशन में द मासेस कैन बिकम डिमोरलाइज्ड. So therefore, in order to prevent this from happening, council work could enthuse the masses. तो उनमें जोश भर देंगे council work, right? ऐसा इनका मानना था. And further, they said that the Swarajists would not cooperate with the government. They would not try to gradually change the colonial government. इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा काउंसिल्स में एंटर करने के बाद? या तो ये काउंसिल्स को मेंड कर देंगे या फिर उनको एंड कर देंगे. यानी कि या तो उनको सुधार देंगे या फिर उन्हें खत्म कर देंगे. दे आर गोइंग टू डिसरप्ट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल एंड expose the hollowness of the system of diarchy. That this is the justification that was given for their stance. अब आगे क्या हुआ कि गया में सेशन हुआ दिसंबर 1922 में. सीआर दास वाज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वाज सेक्रेटरी. तो सीआर दास हु वाज द लीडर ऑफ द स्वराजिस्ट्स and Motilal Nehru, who was the secretary, was another leader of the Swarajists. तो ये दोनों कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने. बनते ही इन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया. क्या? दैट कांग्रेस शुड अलाउ इट्स मेंबर्स टू फाइट इन द अपकमिंग इलेक्शंस. लेकिन दिस रेजोल्यूशन वाज डिफीटेड एंड सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस. अब यहाँ पे एक क्राइसिस सिचुएशन इमर्ज हो गई. क्या? जो डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स 1907 में इमर्ज हुए थे, उसी तरह के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द स्वराजिस्ट्स एंड नो चेंजर्स 1922 में इमर्ज होकर के आए थे. सो देयर वाज अ डेंजर दैट वंस अगेन द कांग्रेस माइट स्प्लिट. लेकिन लीडरशिप में गांधी जी थे. गांधी जी वाज वाइज. ही सेड दैट आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन. तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया? that the Swarajists should be allowed to contest in the upcoming elections not as a separate party but as a subgroup within the Congress. तो स्वराजिस्ट ने क्या किया? स्वराज पार्टी बनाई. इसका ऑफिशियल नाम बड़ा लंबा सा था, ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. दिस वाज फॉर्म्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन 31 December 1922 and in order to avoid the split they were allowed to contest the September 1923 elections as a subgroup within the Congress. What was their performance? तो काफी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, especially in the at the center
and in the assemblies of Bengal and UP. Vittal Bhai Patel, नाम याद रखिएगा, he became the first Indian president of the Central Legislative Assembly. तो जैसे आजकल लोकसभा का स्पीकर होता है, उस समय स्पीकर नहीं बोला जाता था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन होते थे उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था. So he became the first Indian president of the Central Legislative Assembly. Swarajists also joined hands with other political leaders and disrupted the proceedings of the council, forcing the government to use its veto and ordinance making power. तो जो इन्होंने बोला था that they are going to expose the hypocrisy of the government and the hollowness of the system of diarchy, उसको ये करने में कामयाब हो गए. Thus they exposed the hollowness of the constitutional scheme set up by the Montfort reforms. लेकिन C.R. Das died in 1925, and after his death, many Swarajist leaders lost their way. They began to cooperate with the government. मैंने इन नोट्स में लिखा नहीं है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं that those who cooperated with the government were known as the responsivists, and those who did not, they were known as the non-responsivists. Right? तो responsivists में कुछ ऐसे leaders थे, such as Madan Mohan Malviya, M.A. Jayakar, etc. And जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे दे वर लेड बाय मोतीलाल नेहरू. तो ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस है. यूपीएससी प्रॉब्ली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं मेंशन किया हुआ है. राइट. फिर उसके बाद दे फाइनली लेफ्ट देयर डिफरेंट लाइन ऑफ political work and entered into the mainstream national movement finally when the anti-Simon agitation took place. तो उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर, सॉरी काउंसिल से रिजाइन कर दिया एंड दे जॉइंड द मेन स्ट्रीम मूवमेंट. दे गेव नॉन कोऑपरेशन, मतलब स्वदेशी बॉयकॉट, ये सब कुछ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. राइट. फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स in the context of Swarajists. Assertion reasoning है. Assertion is that Swarajists defected and formed a new party independent of the Congress at Gaya. And reason is at Gaya session of 1922, Congress did not endorse the decision for re-entry into Legislative Council. तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? The answer should be the answer should be, all right, Harjot says A, Akash says D. How about other people? आपको क्या लगता है, A होना चाहिए या D? और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है. Anyway, तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? Because they did not part a new party independent of the Congress. The Swarajists were very much a part of the Congress. They never broke away from the Congress. इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. And there is only one option where A is false. तो आंसर is D. Right. कांग्रेस सेशन एट गया में जो काउंसिल एंट्री का रेजोल्यूशन था वो डिफीट हो गया था. Therefore रीजन इज correct. Next question. Consider the following statements with reference to Swarajists. 1. When their proposal for council entry was opposed by the Congress, Swarajists formed a new party independent of the Congress. ये हमें पता है कि गलत है. So 1 is incorrect. Second, they had no faith in civil disobedience. ये भी हमको पता है कि गलत है, क्योंकि जब साइमन कमीशन एजिटेशन शुरू हुआ, they left the legislatures and gave and boycotted और धरना दिया, civil disobedience किया. Right. Thirdly, Jawaharlal Nehru joined the Swaraj Party. So Jawaharlal Nehru never left the hand of Gandhi ji except at the very end. So Gandhi ji was not in favor of the idea of council entry. इसलिए Jawaharlal Nehru also did not join the Swaraj Party. उनके फादर ने ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया. राइट. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. राइट. तो आंसर इज डी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस. 1.
The main difference between Swarajists and no changers was over the issue of elections of legislative councils. Is this correct? Yes, it is true. Second, both Swarajists as well as no changers supported the constructive program of the Congress. Is this correct? Batao. It is not correct. So Swarajists wanted council entry, but no changers wanted to follow the constructive program. Therefore, only one is correct. ठीक है, तो आंसर इज ए. बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है शायद. राइट, नाउ लेट अस कम टू द साइमन कमीशन एंड agitation. In November 1927, as per the provisions of the Government of India Act 1919, एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया. इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन एंड इट हैड 7 मेंबर्स. इसलिए इनके हेड के नाम पे इस कमीशन को साइमन कमीशन भी बोला जाता है. किस एक्ट के अंडर इसका फॉर्मेशन हुआ था? मॉन्टफोर्ड एक्ट के अंडर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ऑफिशियल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. अच्छा, दिस एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच अ कमीशन 10 years आफ्टर इट केम इनटू फोर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फोर्स में कब आया? 1919 में. साइमन कमीशन अपॉइंट कब करी गई? नवंबर 1927 में. यानी कि इट वाज अपॉइंटेड 2 years अहेड ऑफ शेड्यूल. ऐसा क्यों हुआ? तो देखो 1927 में द कंजर्वेटिव पार्टी वाज इन पावर इन ब्रिटेन. 1928 में नए इलेक्शंस होने थे फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड इट वाज वाइडली expected that the Labour Party was going to win, and the conservatives did not want to leave the task of appointing such an important commission in the hands of what they called the irresponsible liberals. ठीक है, तो उनको लगता था कि अगर लिबरल्स को ये अपॉइंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो बहुत लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस को ग्रांट कर देंगे, एंड दे वांटेड टू प्रिवेंट दिस. इसलिए दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड 2 years अहेड ऑफ शेड्यूल. अच्छा, इसको काम क्या करना था? तो इट हैड टू डिटरमिन एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन 2 issues. पहला, whether to expand, restrict or modify the scope of responsible government in India. तो आपको याद होगा 1919 एक्ट में केवल प्रोविंसेस में पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी. तो एक तो ये स्कोप था. सेकेंड, दे ऑल्सो हैड टू डिसाइड द रिलेशनशिप, द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया. तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच का जो रिलेशनशिप था उसको भी इसको रिव्यू करना था एंड उसके रिकमेंडेशंस देने थे. नाउ ये तो हो गया साइमन कमीशन कि क्या था ये. अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट एजिटेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ. सो व्हाई डिड द एजिटेशन टुक प्लेस? इट टुक प्लेस बिकॉज दिस कमीशन वाज एन ऑल वाइट कमीशन. यहाँ पे केवल गोरे थे. तो जितने 7 मेंबर्स थे सारे के सारे अंग्रेज थे. देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन. इसका मतलब क्या हुआ? Nationalists felt that the British think that Indians are not capable of deciding their own political future. And ये काम अगर केवल अंग्रेज कर रहे हैं तो आगे जाकर के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अंग्रेज ही लिखेंगे. So this was the feeling of the nationalists. अच्छा, what was the reaction? So all the major political parties condemned the Simon Commission when it arrived, and when it arrived at Bombay in early 1928, तो इसको कैसे वेलकम किया गया? It was greeted with black flags and the slogan Simon Go Back. तो ये Simon Go Back जो स्लोगन था लखनऊ के रहने वाले एक पोएट ने दिया था. He was known as खलीक उज़ ज़मा. He was also a nationalist leader. तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था Simon Go Back का. And it became the clarion call of the nationalists during this agitation. तो साइमन कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स में उनका काम उनको ये भी करवा रहा था कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाना था और अलग अलग जगह के सिचुएशन को रिव्यू करना था.
अब जहां जहां पे भी ये जाते थे तो वहां पे इनको ब्लैक फ्लैग एजिटेशंस मिलते थे, साइमन गो बैक के चार्ट्स मिलती थी और ब्रिटिश क्लोथ्स का बॉनफायर मिलता था. सो दिस वाज द वे इन विच नेशनलिस्ट्स showed their displeasure against the Simon Commission. अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या? That the political environment which had been passive since the withdrawal of the non-cooperation movement एक बार फिर से एक्टिव हो गया, मास मूवमेंट दोबारा से शुरू हो गया, एंड देयर वाज रिमार्केबल यूनिटी अमंग द नेशनलिस्ट. तो स्वराजिस्ट वापस कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, एंड मुस्लिम लीग हैड आल्सो सपोर्टेड द कांग्रेस इन बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन. अच्छा, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया? इट ट्राइड टू ब्रूटली सप्रेस दीज डिमॉन्स्ट्रेशंस. तो ऐसा एक मैसिव रैली चल रही थी लाहौर में, लेड बाय लाला लाजपत राय, एंड वहां पे जो पुलिस का सुपरिंटेंडेंट था जेपी सॉन्डर्स, ही ऑर्डर्ड अ लाठी चार्ज. लाला लाजपत राय वाज फेटली वुंडेड एंड ही सक्कम्ड टू हिज इंजरीज अ फ्यू डेज लेटर. एंड इसका बदला किसने लिया? भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स बाय assassinating Saunders, right? So, but that happened later. आगे देखिए क्या हुआ. अब साइमन कमीशन आया, इंडिया में खूब सारी उसने गाली खाई एंड वापस चला गया इंग्लैंड. फ्रस्ट्रेटेड विद द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस दैट द साइमन कमीशन हैड टू फेस, अंग्रेजों का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, that was Lord Birkenhead, he issued a challenge to the Indian nationalists. अब ये चैलेंज क्या था? तो इसने बोला कि अगर इंडियन नेशनलिस्ट्स एक साथ बैठ करके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, तो अंग्रेज उसको विदाउट एनी डिले इंप्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, अब नेशनलिस्ट्स वर लुकिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी. 3 different all-party conferences were held at Bombay, Lucknow, and Delhi, Bombay, and Lucknow. And finally, इन्होंने एक कमेटी अपॉइंट करी अंडर मोतीलाल नेहरू and some other prominent leaders such as तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, M.A. जयकर and सुभाष चंद्र बोस. इस कमेटी का नाम है नेहरू कमेटी, since it was headed by मोतीलाल नेहरू. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी. ओके, नाउ दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड इन May 1928 और 4 महीने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट करा. दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन September 1928. किसको सबमिट किया? टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल. It consisted of the following recommendations. तो यहाँ पे क्या डिमांड्स थी और what was the constitutional scheme which had been imagined in the Nehru report? तो it imagined dominion status for India. याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट पूर्ण स्वराज. ठीक है, इट सेड दैट द न्यू इंडियन स्टेट शुड बी अ सेक्युलर स्टेट, जहां पे धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नीदर शुड द स्टेट हैव एनी रिलीजन, neither should it be a Hindu state nor a Muslim state, nor should it have religious affiliations with any other state. Third, it said that universal adult franchise would be introduced in India. That means all adults over the age of 21 would have the right to vote. Now, if you remember 1919 के एक्ट से only 1.5 million out of 260 million people, less than 1% had the vote. यहाँ पे एक बहुत रेवोल्यूशनरी डिमांड करी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करना चाहिए. Then they also demanded that the concept of separate electorate should be abolished. ठीक है, तो पहली बार कांग्रेस ने बोला ओपनली कि नेहरू रिपोर्ट ने बोला ओपनली कि सेपरेट इलेक्टरेट्स नहीं होने चाहिए. बट इट सेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स wherever they are in minority. So for example, if they are in minority in the province of UP, there should be reservation for Muslims in proportion to their population. Next, they said
that fundamental rights for Indians and equal rights for men and women should be guaranteed. So पहली बार guaranteed fundamental rights की डिमांड नेहरू रिपोर्ट में आई थी. किस तरह के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मांगे गए? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी. तो इस तरह के राइट्स मांगे गए. सो जो ओरिजिनल लिबरल राइट्स होते हैं विच वर इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरह के राइट्स इंडियंस के लिए डिमांड किए गए. देन फाइनली इट सेड दैट फेडरलिज्म का प्रिंसिपल इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए. दैट मीन्स दे वांटेड फेडरलिज्म विद रेजिडुअल पावर्स विद द सेंटर, रिजाइडिंग इन द सेंटर. ठीक है, स्टेट्स के पास रेजिडुअल पावर्स नहीं होनी चाहिए. अच्छा, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द वेरियस पार्टीज? तो कांग्रेस ने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया. हिंदू महासभा एंड द सिख सभा और द सिख लीग रिजेक्टेड इट. व्हाई? दे वर अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशंस बीइंग गिवन टू मुस्लिम्स. क्लियर है? अच्छा, मुस्लिम लीग में एक स्प्लिट हुआ. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिजेक्टेड बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट, बट मुस्लिम लीग में एक स्प्लिट हुआ. जो नेशनलिस्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग थे, दे अग्रीड विद द कांग्रेस एंड एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट होल हार्टेडली. बट अनदर सेक्शन led by Muhammad Ali Jinnah rejected this and issued a 14-point demand, जिसको अभी हमें आगे जाके देखना है. Then there were some young nationalists who did not agree with the principle of dominion status. So Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, they wanted पूर्ण स्वराज, एंड नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने इस बेसिस पे पार्शियली रिजेक्शन किया. ठीक है, अदरवाइज ऑल द अदर डिमांड्स वर एक्सेप्टेड. अच्छा, इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना गेव हिज फेमस 14-point डिमांड्स which dealt with minority issues, issues of federalism, etc. अब इसमें से there were 5 key demands on which the Muslim League was not ready to compromise. तो क्या क्या डिमांड्स थी? 5 की डिमांड्स क्या थी? फर्स्ट, that separate electorates shall continue till universal adult franchise is granted. तो जिन्ना सेड कि जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है तब तक सेपरेट इलेक्टरेट्स कंटिन्यू होंगे. क्यों? बिकॉज इन द सिस्टम ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज हु हैड द मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी? द हिंदूज. Muslims were socially and educationally backward, and that is why they would be underrepresented, disenfranchised disproportionately in the scheme of this thing, joint electorate without universal adult suffrage. Secondly, he said that reservation for seats for Muslims in proportion to their population should be given. अब कांग्रेस ने क्या बोला था? That there should be reservation for Muslims wherever they were in minority. अब इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब, in Assam, if Muslims are in majority, they would not get any reservations. But what did Jinnah demand? That चाहे जहां पे भी हो, they should get reservation in proportion to their population. For example, even if Muslims outnumber Sikhs 10-1 in Punjab, तो वहां पे भी Muslims को 90% reservation मिलना चाहिए. अच्छा, thirdly he said that 1/3 seats in the central legislature should be reserved for Muslims. He also demanded federalism but with a weak center. Why was it more important for the Muslims or at least for Jinnah to have a weak center? क्योंकि अगर provinces के पास residual powers होंगी, so they would not always have the threat of the center hanging upon them. कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई लॉ सेंटर ना बना दे, ऐसा इनको डर था. दैट इज व्हाई दे वांटेड प्रोविंसेस टू हैव द रेजिडुअरी पावर्स एंड द सेंटर टू बी वीक. फाइनली एक डिमांड इन्होंने रेज करी फॉर कम्युनल वीटो. इसका क्या मतलब हुआ?
that if 3/4 of any minority community rejects a bill, then that bill cannot be passed. For example, if 3/4 of the members, Muslim members in the legislature, reject a certain bill, so then that bill will end over there. So this uh, in this manner, he was asking for a communal veto, and these demands were not accepted by the Congress, and this marked the first breach between the Congress and the Muslim League. तो देखो, if you have to look at the league and कांग्रेस रिलेशंस, तो यू कैन आइडेंटिफाई 3 मेजर ब्रेक्स जो कि इनमें हुए, तो जिससे कि इनके फासले बढ़ते गए. इफ यू लुक एट 1916, तो दे हैड साइंड द लखनऊ पैक्ट, दे हैड स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. फर्स्ट ब्रेक हैपेंड इन 1928, जब जिन्ना की 5 पॉइंट डिमांड्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया. Second break happened in 1937 after the UP elections, and third break जहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को किसी तरह से बचा लिया जाए एंड पार्टीशन को प्रिवेंट कर दिया जाए, दैट केम इन 1946 in the cabinet mission plan. तो वहां पे भी due to certain misunderstandings and due to certain obstinacies, that opportunity was lost, and after that partition became inevitable. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. इस पे प्रीलिम्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट मेंस में आपको ये आगे जाके हेल्प करेगा. राइट, सो दिस वाज द नेहरू रिपोर्ट एंड इट्स रिस्पांस. अब मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, सिख सभा ने एंड यंग नेशनलिस्ट ने इस रिपोर्ट को अपोज किया था. तो सरकार ने इसको लगाने से मना कर दिया, इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया. अच्छा, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. नेहरू रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल अरविंद आफ्टर इट वाज सेंट टू ऑल द डिफरेंट पार्टीज, एंड although it had set forth the demand for dominion status, younger nationalists क्या मांग रहे थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दिया. कब? अपने 1928 सेशन में. किसको दिया? सरकार को दिया. क्या बोला? कि अगर सरकार ने 1 साल के अंदर अंदर नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो कांग्रेस क्या करेगी? एक मास मूवमेंट लॉन्च करेगी. फॉर व्हाट पर्पस? टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो इट वुड लेट गो ऑफ इट्स डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस एंड गो टू द साइड ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, जो कि पूर्ण स्वराज मांग रहे थे. अब सरकार ने रिस्पॉन्ड किया इस पे? सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. एंड नेक्स्ट ईयर का जो सेशन था in 1929, it happened at Lahore. The president was Pandit Jawaharlal Nehru, and Congress in this session, in keeping with its 1928 promise, adopted the Purn Swaraj resolution and for the first time officially demanded complete independence. 31st December 1929 को तिरंगा लहराया गया. कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. तो एक चीज आपको और पता चली कि लाहौर इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. And 26 January 1930 was observed as Independence Day for the first time. And till independence was achieved in 1947, 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे की तरह कांग्रेस मनाती रही. ठीक है, सो दीज वर द मेजर आउटकम्स. In 14 point demand, how are second and third point in sync? ये देखिए second and third point क्या है. Right, reservation of seats for Muslims in proportion to the population. यहाँ पे आप लिख लीजिए डैश करके, हाइफन करके, at the provincial level, and 1/3 Muslim members in the central legislature. ठीक है, so Jinnah was demanding for proportional representation to Muslims in the provinces, चाहे वो कोई भी province हो, whether it is Hindu majority province or Muslim majority province, वहाँ पे उसको reservation चाहिए था. And 1/3 Muslim members should be there in central legislature. This was because उस समय इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन about 30% था. That is why he was demanding
1/3 of the seats to be reserved for Muslims. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि ये सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहा है थर्ड पॉइंट में. क्लियर हुआ डाउट? ऑल राइट. राइट, तो लाहौर सेशन भी आपने देख लिया. नाउ कम टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? कॉजेज, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स, पार्टिसिपेशन और फीचर्स. राइट, तो सबसे पहले देखो कॉजेज क्या है. तो 1927 साइमन कमीशन के अराइवल से जितने भी इवेंट्स हुए थे, दैट सर्व्ड एज द बैकग्राउंड फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कांग्रेस के अल्टीमेटम को सरकार ने मना कर दिया. कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लेके आए, अडॉप्टेड दैट, एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग अ मास मूवमेंट. और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लीडरशिप दी गांधी जी के हाथों में. व्हाट डिड गांधी जी डू? इन ट्रू फॉर्म ही प्रेजेंटेड द गवर्नमेंट अ सेट ऑफ डिमांड्स. तो 11 डिमांड्स इन्होंने रेज करी which had demands of general interest. तो general issues कुछ raise किए. There were some specific bourgeois demands and there were some specific peasant demands. इसमें से कुछ major demands यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो देख लीजिए. Such as गवर्नर जनरल अरविंद को ये डिमांड्स प्रेजेंट करी गई एंड इसमें मेजर डिमांड्स थी टू चेंज दी सॉल्ट लॉ. तो अंग्रेजों ने एक सॉल्ट लॉ बना रखा था, उसमें सॉल्ट बनाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता था जो कि इंडियंस के पास नहीं होता था. फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ एक सॉल्ट टैक्स इंपोज किया जाता था. सेकेंड डिमांड वाज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू. सो ये जो फर्स्ट टू डिमांड्स थी, दीज वर द स्पेसिफिक पेजेंट डिमांड्स. ठीक है, सो यू कैन मेक दिस नोट. फर्स्ट टू डिमांड्स स्पेसिफिक पेजेंट डिमांड्स. अच्छा, नेक्स्ट डिमांड क्या है? टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी एंड आफ्टर दैट टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री. तो डिमांड्स 3 and 4 आर स्पेसिफिक बूर्जुआ डिमांड्स. ये किसके इंटरेस्ट में है? इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट में है. तो दीज आर स्पेसिफिक बूर्जुआ डिमांड्स. अच्छा, आगे देखिए. देन देयर वर अ फ्यू डिमांड्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट सच एज complete prohibition of liquor and other intoxicants, release of political prisoners, return of confiscated property, inquiry against police atrocities, and lifting the ban on banned nationalist literature and banned nationalist newspapers. अब सरकार ने क्या किया? ये डिमांड्स मानी? बिल्कुल नहीं मानी. तो गांधी जी ने क्या किया? ही लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. राइट, अब कैसे लॉन्च किया? तो 12 मार्च 1930 को he started from Dandi, he started from साबरमती आश्रम with 78 people. और कहाँ जा रहे थे? He was going towards Dandi. And on 6th April, after traveling for 240 miles or 378 kilometers, he reached the coastal village of Dandi with thousands of people. तो रास्ते में गली कूचों मोहल्लों से गुजरते हुए निकले थे एंड भीड़ इकट्ठा होती गई इनके साथ. So he reached there with thousands of people, and over here he committed an act of civil disobedience by breaking a particular law. कौन से लॉ को तोड़ा इन्होंने? सॉल्ट लॉ को. कैसे तोड़ा? By simply picking up salt from the beach, from the coast. How was this breaking of the law? Because Indians were not allowed to manufacture salt without a license, and thus began the civil disobedience movement. राइट, एंड आफ्टर दिस अलग अलग जगहों पे ये मूवमेंट आग की तरह फैलने लग गया. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान. तो 2 बार नाम में खान है, असली पठान है. राइट, इनका नाम था बादशाह खान, ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. ही ऑर्गेनाइज्ड मास डेमोन्स्ट्रेशंस थ्रू हिज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदाए खिदमतगार. So that means servants of God. They were also known as the red shirts. क्यों? क्योंकि लाल रंग की शर्ट पहनते थे. अच्छा, he also popularized the Gandhian message and the message of civil disobedience through a Pashto monthly called the Pakhtun. तो पख्तून कौन पब्लिश करता था? आंसर वुड बी खान अब्दुल गफ्फार खान. ओके,
अच्छा, एक इवेंट हुआ यहाँ से रिलेटेड कि यहाँ पे मूवमेंट इतना पावरफुल था कि पेशावर से अंग्रेजों का कंट्रोल कई दिनों तक खत्म हो गया था. सो फॉर सेवरल वीक्स पेशावर वाज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द आर्मी हैड टू बी कॉल्ड इन. तो गढ़वाल राइफल के सोल्जर्स को जब ऑर्डर किया गया कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर करें, तो उन्होंने फायर करने से मना कर दिया. सो दिस वाज समथिंग which had not been seen earlier since the revolt of 1857 कि अंग्रेजों के सोल्जर्स उनकी बात मानना बंद कर दें. ठीक है. अच्छा, यूपी में क्या हुआ? नो रेवेन्यू कैंपेन के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस किया गया. एंड हाउ वाज द mobilization done? Through Prabhat Ferries, magic lantern shows, and by illegal news sheets known as patrikas. तो illegally इन पत्रिकास को पब्लिश किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था. ईस्ट इंडिया में क्या हुआ? यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड एरियाज हैं, तो नो रेवेन्यू कैंपेन के साथ साथ एक नो रेंट कैंपेन भी शुरू हो गया इन बिहार एंड बंगाल. फर्दर एंटी चौकीदारी टैक्स एंड एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स एजिटेशन भी देखने को मिला. व्हाट इज दिस चौकीदारी टैक्स? तो गांव में एक चौकीदार होता था हु यूज्ड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट बट वाज टू बी पेड थ्रू टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स. अब ये इसको पैसे कौन देता था? विलेजर्स. लेकिन ये खबरी किसका था? सरकार का. सो इसके अगेंस्ट मूवमेंट हुआ कि चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा. सिमिलरली एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स. तो यूनियन बोर्ड्स यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स होती थी एंड ओवर टाइम इनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. अब यहाँ पे केवल अंग्रेजों का ही कंट्रोल था. तो इनके अगेंस्ट भी इस टैक्स के अगेंस्ट भी एजिटेशंस हुए. अच्छा, सेंट्रल इंडिया और कर्नाटका यहाँ पे जंगल थे तो फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट फॉरेस्ट एजिटेशंस हुए. असम में एंटी कनिंगम सर्कुलर एजिटेशन हुआ. राइट. तो यू माइट रिमेंबर कि हमने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे पढ़ा था कार्लाइल सर्कुलर. ऐसा ही एक सर्कुलर आया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन असम नोन एज द कनिंगम सर्कुलर. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू थ्रेटन स्टूडेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन नेशनलिस्ट एक्टिविटी. एंड इसके अगेंस्ट एजिटेशन हुआ. कहाँ पे? असम में. मणिपुर एंड नागालैंड में रानी गार्डन यू हु वाज ओनली 13 years old at the time, she organized mass protest demanding freedom. तो इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए. अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया एंड शी स्टेड इन जेल टिल 1947. राइट. सो यू कैन इमेजिन 13 साल की बच्ची को जेल में बंद कर दिया था इन्होंने. राइट. देन देयर वर अ नंबर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रहs. सॉल्ट सत्याग्रह दो तरह से हुए. वन वर मार्चेस एंड द अदर्स वर एजिटेशंस. तो जैसे डांडी मार्च किया था उस तरह के कई मार्चेस हुए. द इम्पोर्टेंट वंस हैपेंड इन केरला, तमिलनाडु एंड इन ईस्टर्न इंडिया, असम में, असम और बंगाल में. तो केरला में द लीडर वाज के केलेप्पन. इनको केरला गांधी भी बोला जाता है. He led a salt march from Calicut to Padiyanur. Calicut was inland and Padiyanur was on the coast. And वहां पे जाके इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. सी राजगोपालाचारी was active in Tamil Nadu and he led a salt march from Tiruchirappalli to Vedaranyam in Tanjore district. Satyagrahis from Assam led a salt march from Sylhet in Assam to Noakhali. अच्छा, देन सॉल्ट एजिटेशंस भी हुए. तो यहाँ पे व्हाट वर द सत्याग्रहीज ट्राइंग टू डू? दे वर ट्राइंग टू एंटर द सॉल्ट फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट देमसेल्व्स. तो सॉल्ट फैक्ट्रीज जहाँ पे इस तरह के मेजर एजिटेशंस हुए, इंपॉर्टेंट वंस आर वडाला, सैनिकताल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आइकॉनिक ऑफ all of the protests during the civil disobedience movement happened at the Dharasna salt works in Gujarat. तो यहाँ पे इनिशियली गांधी जी वॉज सपोज टू लीड दी सत्याग्रह, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया. देन जवाहरलाल नेहरू वॉज सपोज टू लीड दी सत्याग्रह, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया. फाइनली लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाय सरोजनी नायडू, अली इमाम एंड मनीलाल हु वॉज द सन ऑफ गांधी जी. एंड यहाँ पे हुआ क्या कि पुलिस ने फैक्ट्री के गेट्स को बैरिकेड कर रखा था और वहां पे अपने लठबाज खड़े कर रखे थे. Satyagrahis
what they did was कि they came in a straight line and without making any violence they tried to enter into the factory to make salt and पुलिस ने इनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए. एक अमेरिकन जर्नलिस्ट इस पूरे वारदात को कवर कर रहा था. दैट वाज मैक्स वेबर एंड ही इंटरनेशनलाइज्ड द एंटायर incident. And what happened was that the British Empire was criticized all over the world. And for the first time, the extent of discipline being showed by the satyagrahis in India was recognized all over the world. अब इसका इन्फ्लुएंस अमेरिका में भी रिफ्लेक्ट हुआ. कैसे? ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने भी गांधीयन स्ट्रैटेजी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ही एम्प्लॉय किया एंड ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय दिस एजिटेशन. देन flag agitations also took place. So Tiranga had become a national symbol after the Purna Swaraj resolution. And आंध्र प्रदेश में टोटा नरसैया ने एक फ्लैग एजिटेशन लीड किया. केरला में पी कृष्ण पिल्लाई लेड द एजिटेशन एंड सूरत में इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रन. अब देखते हैं कि पार्टिसिपेशन अलग अलग ग्रुप्स का किस लेवल पे हुआ. तो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले कम था, बट इट वाज मोर इंटेंस. विमेन का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले ज्यादा था. Peasant participation was massive. Traders had pledged not to sell foreign goods. Intellectuals, that is the professionals such as lawyers, doctors, etc., they also practiced, they were also active. Industrialists ने pledge किया that they will not use foreign yarn and committed to the use of चरखा खादी. तो इन्होंने मशीन मेड खादी यूज करने से मना कर दिया, फॉरेन मेड यार्न यूज करने से भी मना कर दिया, और ये बोला कि हम कपड़ा केवल चरखा खादी के धागे से ही बनाएंगे. अच्छा, लेकिन मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स सीन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज मिसिंग एंड मुस्लिम्स को इस बार कांग्रेस अट्रैक्ट करने में नाकामयाब रही थी. You might remember that only a small section of the Muslim League, which was nationalist, had accepted the Nehru report. बाकी सबने उसको रिजेक्ट कर दिया था. राइट. वर्कर्स ने क्या किया? इनका पार्टिसिपेशन लो था. वाई? बिकॉज दे बिलीव द कांग्रेस टू बी वर्किंग टूवर्ड्स बूर्जुआ इंटरेस्ट्स. लेकिन ऐसा नहीं था इनका पार्टिसिपेशन निल हो. लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देयर पार्टिसिपेशन वाज स्पोरेडिक. लेकिन कुछ जगहों पे मेजर स्ट्राइक्स देखने के लिए मिली. फॉर एग्जाम्पल एट शोलापुर. तो शोलापुर इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र जहां पे वर्कर लेड मूवमेंट हुआ एंड the British government was wiped out and stayed that way for almost 10 days. तो 10 दिन तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहां पे नामो निशान नहीं था. फीचर्स क्या हैं इसके? इट वाज वाइड स्प्रेड, नॉन वायलेंट एंड अ टू ऑल इंडिया मास मूवमेंट विद न्यू मेथड्स ऑफ एजिटेशन. तो हमने देखा कि कई सारे नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, सच एज सॉल्ट एजिटेशन, फ्लैग एजिटेशन, नॉन रेवेन्यू no tax agitation, no revenue agitation, anti-chowkidari tax, anti-union board tax, anti-Cunningham circular agitation, etc., etc. Right? अच्छा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी was missing. Non-violent था, लेकिन elements of class struggle were also visible. Elements of class struggle were visible and could not attract. Although elements of class struggle were visible, but they could not attract workers in a लार्ज नंबर. राइट. तो वर्कर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं था. ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर द फर्स्ट ग्रुप हु शोड साइंस ऑफ फटीग, क्योंकि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से सबसे ज्यादा हर्ट हो रहे थे एंड गवर्नमेंट रेप्रेशन वाज सीवियर. अच्छा, अनलाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सरकार ने यहाँ पे पहल करी. दे एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ कंसिलिएशन टू द कांग्रेस. अरविंद, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनवाइटेड गांधी जी टू हैव अ डायलॉग एंड बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड
the Congress to attend the second round table conference. तो गांधी जी और अरविंद के बीच में एक पैक्ट हुआ. अच्छा, गांधी अरविंद पैक्ट was also the first time that an Indian and the Governor General had met each other as equals. तो गांधी जी was received as an equal by Arvind. इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी भी. अच्छा, हाँ, तो कुछ पॉइंट्स पे इनका अग्रीमेंट हुआ. तो कांग्रेस अग्रीड कि सीडीएम को सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड इट वुड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. Government agreed कि salt law would be changed and people who are living on the coast, they would be allowed to manufacture salt without a license for their personal use. तो for commercial purpose नहीं, लेकिन for personal use बना सकते हैं. फर्दर गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को ऑक्शन ऑफ नहीं किया गया है, सो इट विल बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल ओनर्स. So it will be returned to their original owners. Further, the government allowed peaceful protest against liquor. तो ये पैक्ट हुआ था. On the basis of this, इसको ratify करने के लिए एक स्पेशल सेशन हुआ. कहाँ पर? कराची में. Who was the president of this special session? सरदार वल्लभ भाई पटेल. अच्छा, इस सेशन में क्या क्या चीजें हुई देखो. इंडियन नेशनल कांग्रेस एंडोर्स द गांधी अरविंद पैक्ट. तो यानी कि कांग्रेस ने गांधी अरविंद पैक्ट के ऊपर अपनी मुहर लगा दी. इट सेड दैट इट वुड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो गांधी जी वुड रिप्रेजेंट द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अच्छा, दिस एक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस स्पेल्ट आउट what स्वराज would mean to the masses. तो इसके पहले कांग्रेस ने क्लियरली कभी ये नहीं डिफाइन किया था कि मासेस के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा. पहली बार बताया कि मासेस के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा. They said that it would mean fundamental rights and a new economic program. So for this they adopted two resolutions, that is the resolution on fundamental rights and the resolution on new national economic program. So they said that Swaraj for the masses would mean freedom of religion, freedom of movement, freedom against discrimination, right to equality, right to life and liberty, right to preserve your own culture, and for in the economic sphere, Swaraj would mean freedom from heavy burden of taxation, protection to industries, and education, and this thing, universal adult suffrage. इस तरह के इन्होंने फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए. राइट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद फिर से रिज्यूम हुआ. कांग्रेस ने दिसंबर 1932 में 1931 में इसको री इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो अब रिपीट नहीं हो पाई. द मासेस हैड बिकम tired and the lost momentum could not be regained, and in 1934 it was officially withdrawn by गांधी जी. ठीक है. अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए. तो आंसर इज 1. which was the only round table conference which the Congress attended? It was the second round table conference. Who represented the Congress at the round table conference? Mahatma Gandhi. Who was the representative of Hindu Mahasabha at the round table conference? Muhammad Ali Jinnah. Who represented Muslim League at the round table conference? हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट किया मदन मोहन मालवीय ने, एंड मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया मोहम्मद अली जिन्ना ने. who represented the depressed classes? So that was Dr. Ambedkar. Did Dr. Ambedkar raise the demand for separate electorates at the roundtable conference? Yes, he did. In which roundtable conference? In the first roundtable conference. First roundtable conference में separate electorate for depressed classes का demand raise किया गया था. Who raised it? Dr. Ambedkar. अच्छा,
1932 मैकडॉनल्ड अवार्ड आया, बर्गर नहीं दिया गया था, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था इस अवार्ड के थ्रू. इट वाज आल्सो नोन एज द कम्युनल अवार्ड. In accordance with the negotiations with Dr. Ambedkar, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced that depressed classes would be declared as a minority and they would get separate electorate. कांग्रेस ने इसको अपोज किया सिंस इट वाज प्लेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल. एंड सबसे वेहेमेंट ऑपोजिशन किसने दिया? गांधी जी ने. तो गांधी जी को ये लगा दैट अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स डिप्रेस क्लासेस को मिल जाएंगे तो दो चीजें होंगी. फर्स्टली, हिंदू कम्युनिटी इज गोइंग टू बी irreversibly fractured, and secondly, the concept of untouchability is going to become institutionalized. कि जो डिफरेंसेस सोसाइटी में रहते हैं अब वो डिफरेंसेस काउंसिल में भी इमर्ज हो जाएंगे एंड बाय लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे. तो गांधी जी ने क्या किया? ही वाज सर्विंग अ सेंटेंस at the Yerawada jail in Pune and he went on a fast unto death. बहुत दिनों तक अंबेडकर टस से मस नहीं हुए. 21 दिन के फास्ट के बाद ही रीच्ड द येरावाड़ा जेल इन पूना along with Madan Mohan Malviya and the Pune Pact was signed. इस पूना पैक्ट में क्या बोला गया? दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस वुड नॉट गेट सेपरेट इलेक्ट्रेट. तो पूना पैक्ट के थ्रू कम्युनल अवार्ड को नेगेट कर दिया गया. सेकेंडली, the depressed classes would now get twice the number of reserved seats that they currently enjoyed. यानी कि इनके लिए जो सीट्स रिजर्व थी उसका नंबर डबल कर दिया गया एट ऑल लेवल्स, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर आल्सो एंड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आल्सो. इस पैक्ट को साइन किसने किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड पंडित मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदूज. क्लियर है इतना? सो दिस वाज द पूना पैक्ट ऑफ 1932. लास्ट टॉपिक देखना है हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसका बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत इस स्टेज में साइमन कमीशन के थ्रू शुरू हो गई थी. उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया एंड जिन्ना की 14 पॉइंट डिमांड्स आई. देन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड. On the basis of the discussions held during the round table conference, British government ने एक white paper publish किया to elicit reactions to it, and finally on the basis of this white paper, the 1935 Act was introduced. It was enacted. So what were the provisions, major provisions of the 1935 Act? तो देख लो यहाँ पे छोटे में लिखे हुए हैं. First of all, provincial autonomy would be given. तो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस खत्म कर दिया गया एंड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनमस गवर्नमेंट्स वर क्रिएटेड इन द प्रोविंसेस. तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. लेकिन द फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी, इसको अभी कबर में नहीं लिटाया गया. व्हाट द ब्रिटिश डिड वाज दे रिवाइव्ड इट ज़ॉम्बी की तरह. और कहां पे लाके इसको बैठाया? एट द लेवल ऑफ द सेंटर. ठीक है, तो सेंटर पे डायरकी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया. अच्छा, देन दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. लेकिन ये प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. क्यों? बिकॉज इट वाज बेस्ड, it depended on the fulfillment of a few conditions. कंडीशन ये लगाई गई कि जब तक half the princely states which account for at least half the population in the princely states agree to this provision, तब तक ये provision implement नहीं किया जाएगा. तो ये जो डायरकी एट द सेंटर है एंड ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसका प्रिंसिपल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया. क्लियर है? तो 1919 का जो प्रिंसिपल था फॉर रिप्रेजेंटेशन, जो स्कीम थी फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस स्टेट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट वाज अप्लाइड, दैट वाज
कंटिन्यूड एट द सेंटर. सॉरी, डायरकी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रिंसिपल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था. अच्छा, देन अगेन दिस प्रोवाइडेड फॉर अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, जिसमें एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स में प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो बी रिप्रेजेंटेड. प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स होंगे दे वुड बी सिलेक्टेड बाय नॉमिनेशन, नॉट थ्रू इलेक्शन. एंड जो प्रोविंसेस के मेंबर्स होंगे दे वुड बी इलेक्टेड. लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम आ नहीं पाया बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइन दी फेडरेशन. अच्छा, नए प्रोविंसेस बनाने की बात करी गई. कहाँ पे? उड़ीसा was to be separated from Bihar and situated as a separate province with its capital at Cuttack. Same was to be done with Sindh, which was to be separated from Bombay with its capital at Karachi. Then this act also provided for a federal court. कहाँ पे? At Delhi. This court was to provide for resolution of disputes between the provinces, among the provinces, between the provinces and the center, and between the one province and the center and others etc. जितने भी permutations combinations होते हैं उसके. अच्छा, ये जो court है, it was finally established in 1937 and this is the court which later became the Supreme Court. तो Supreme Court की foundation 1935 Act के through डाल दी गई थी. Finally, Burma was to be separated from British India and established as a separate colony. ठीक है, तो these were the various provisions of this act and response क्या आया? It was condemned by almost all sections of the nationalists. Why? Because the failed principle of diarchy had now been introduced at the center. Jawaharlal Nehru ने क्या बोला कि diarchy is like a car which is no engines and all brakes. इसके criticism में. But ये याद रखना that he had said this not in the context of the Government of India Act 1919 but the Government of India Act 1935. ठीक है, जब दूसरी बार डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके रिएक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था. अच्छा, बट हिंदू महासभा declared support for the scheme created by this act and it said that इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं हम उससे खुश हैं. राइट, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर. तो कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं. महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस? सेवाग्राम, डांडी, साबरमती और वर्धा. पूछा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से स्टार्ट किया. डांडी मार्च कहां से स्टार्ट किया ये नहीं पूछा है. ठीक है, एवरीबडी इज सेइंग सी. इसीलिए मैं बोलता हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आंसर देने में. दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को. इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत तो पहली बार जब उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया था तब हुई थी. वेयर डिड दैट हैपन? डिड दैट हैपन एट साबरमती? नहीं ना, इट हैपेंड एट डांडी. देयरफॉर द आंसर इज बी, डांडी. Right. Next question, which of the following began with Dandi March? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. आंसर is civil disobedience movement, C. Next, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? तो देखते हैं कौन कितने ध्यान से सुन रहा था चीजों को. ऑप्शंस आर वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सी राज गोपालाचारी, के कामराज और एनी बेसेंट. जो नाम हमने बताए थे सॉल्ट मार्चेस में, एक को छोड़ के किसी और का नाम है ही नहीं. देयर कैन बी ओनली वन आंसर. बताओ, हु लेड द मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम इन तमिलनाडु? राइट, तो आंसर इज बी, सी राजगोपालाचारी. बाकी केरला में हु वाज द लीडर? केरला गांधी. कौन है केरला गांधी? के केलप्पन. एंड इन असम एंड बंगाल सत्याग्रहीज फ्रॉम असम. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
The Khudai Khidmat Guards, also known as the Red Shirts, called for A. The union of Pakhtun tribal areas in northwest with Afghanistan. B. The adoption of terrorist tactics and methods for terrorizing and finally ousting the colonial rulers. C. The adoption of communist revolution ideology for political and social reform. Or D. The Pathan regional nationalist unity and struggle against colonialism. बताइए, which should be the correct answer? ठीक है, the correct answer is D. खुदाई खिदमतगार्स called for Pathan regional nationalist unity and struggle against colonialism. तो इनके जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, he was himself known as Frontier Gandhi. तो बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं they could not be applicable. ठीक है, तो it could only means nationalist struggle against colonialism. Next question. Consider the following events during India's freedom struggle: Chauri Chaura outrage, Morley Minto reforms, Dandi March, and Montague Chelmsford reforms. Which of the following is the correct chronological of the events given above? ये क्वेश्चन तो हम शायद कर भी चुके हैं पहले, राइट? ये किसी और सेक्शन में भी सेम क्वेश्चन था. Next question. Consider the following statements. In the first roundtable conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorates for the depressed classes. Second statement. In the Pune Pact, special provisions for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. Third statement. The Indian National Congress did not take part in the third roundtable conference. बताना है कौन कौन से correct हैं. So is the first one correct? Yes, it is correct. Second one correct? No, it is not correct. Pune Pact was about representation in legislatures, not about local bodies or civil services, right? And the third statement is also correct. तो कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल में कौन पार्टिसिपेट किया था? Only the second one. And who had represented them? Mahatma Gandhi. So first and third statements are correct. Answer is C. अगला क्वेश्चन. पूना पैक्ट प्रोवाइडेड फॉर, बताइए, A. creation of dominion status, B. separate electorates for Muslims, C. separate electorates for Harijans, or D. joint electorate with reservation for Harijans. Right, सबने आंसर दे दिया ऑलरेडी. वेरी गुड. द आंसर इज joint electorate with reservation for Harijans. So we have successfully completed a